So, welcome back, students. Now we will talk about our next example, which is again very much important. That is the simplification of the Boolean expression, which is a multiplied by b and the whole complement. Boys, here we have the two concepts. The first one is if we have the whole complement, then it means that we will simplify the whole expression first, and after that the complement will be resolved. And then if we have the single individual complement, then we will first move on to simplify the complementary variable, and after that then the whole expression. Okay, so now here we have the whole complement over a dot b, and after that we have the plus sign and then a complement individual and multiplied dot sign b. So how we will apply, how we will change? Here we will use the two levels of rules, the De Morgan's law and the complementary law, two laws. Okay, how? The first one is a in the De Morgan law we knows that the a multiplied by b whole complement is equivalent to a complement plus b complement. Okay, so here we have the a dot b whole complement. Okay, that is here, and then a complement dot b. So now we have the a complement plus b complement, that will be totally by the De Morgan's law, and then a complement dot b is the same, that will be move at the downwards. Now after that we will apply the other complement at the b. how? that will be a complement plus a complement, यानी कि हम उसको अरेंज कर देंगे. जितने भी a complement वाले जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, एंड देन b एंड b complement वाले जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे. ठीक है ना. सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर a complement प्लस a complement आ गया, यानी कि एक ये वाला है और ये वाला, एंड देन b complement b एक तरफ आ गया. नाउ वी हैव हेयर a complement प्लस b complement. जो सिंगल b था हमने उस पर b complement लगा दिया, तो वो हमारे पास हो गया a complement a. जैसे उसकी जो ब्रीफिंग है वो इधर सामने मेंशन भी है कि हमारे पास सिंस जो a complement था that is already present in the expression, that is a complement dot b complement. Now we have here the absorption law. अब absorption law क्या कहता है ये देखें ज़रा. we will move towards the absorption law. here the law number 8, that is a plus a dot b is equivalent to a. ठीक है ना. तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास इधर कॉम्प्लीमेंट में है a complement dot b plus b complement, so that's why we will have the b complement here. So now the a complement plus b complement is the final answer through the absorption law. I hope that is very easy. And now we have here the example number 3, that is simplification the expression of a plus b dot a plus b complement. Okay, so here we have the very simple solution. Again, the first law will be solved by the distributive law. Okay, distributive law, again we have the expression in the group form, and after that we will move from the group to the other dispersed form. हमने वो ग्रुप खोल देने होते हैं, डिकम्पोज करने हैं. जैसे हम समझते हैं कि we need to decompose our complex problem into smaller problem. Now so that's why we have here the group form. अब इधर हमारे पास एक डिस्पर्स्ड फॉर्म है, हमने अपोजिट करके उसको ग्रुप फॉर्म में चेंज कर दिया. कैसे किया? a प्लस बी डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b डॉट b कॉम्प्लीमेंट. ठीक है जी. सो आप देखेंगे कि हमारे पास
जो इक्वेशन डिफरेंट ग्रुप्स में थी अब वो ए प्लस और बी डॉट पी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कंसिस्ट हो गए, शिफ्ट हो गए, चेंज हो गई। आफ्टर दैट वी हैव हियर हमारे पास इधर कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू जीरो में चेंज कर दिया। कैसे, देखें हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें क्या कहता है, ये देखें ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो। सो हियर हमारे पास देखें ज़रा क्या है कि ए प्लस जीरो, लाइक बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट जीरो हो गया, दैट इज जीरो। अब ये देखें ये जीरो हो गया, सो ए प्लस जीरो दैट इज इक्विवेलेंट टू a now. So this is by the identity law. I hope that this is clear. So now the last fourth example is very much easy example, like the simplification of the expression. Here we have a in the double complement plus b dot a plus b complement. Solution क्या है इसका, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, a डबल कॉम्प्लीमेंट। अब डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हम इन दोनों को जो है ना वो कट करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट बचेगा b पर, डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। हियर वी हैव ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या है इधर, डिमॉर्गन लॉ। इधर भी हम दो लॉज अप्लाई करेंगे, एक तो कॉम्प्लीमेंट, दूसरा डिमॉर्गन लॉ। सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हियर वी हैव ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए एंड प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन डेवलप हो चुका है। वो कैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू इन इक्वेशंस को ओपन कर दिया। ठीक है, लाइक ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इधर हमने क्या किया, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट वैसे लिख दिया। ठीक है जी, और फिर ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है डॉट मेंशन है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो इधर हमारे पास आप देखें कि सबसे पहले ये जो ए है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस ए एंड दिस बी। ठीक है, और उसके बाद ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस ए एंड दिस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास ये इक्वेशन सारी सामने आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर, एंड आफ्टर दैट वी हैव आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ मीन्स ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो आप देखें ज़रा हमारे पास ये इधर क्या है, ये देखें ए प्लस ए दैट विल बी दिस ए, एंड देन ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन आइडेम्पोर्टेंट लॉ। वो कहेगा जी ए और ए प्लस करेंगे तो वो भी ए बनेगा। तो हमारे पास ये देखें ए और ए प्लस किया तो ए बन गया, और बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी सिंपल कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द इक्वेशन। सो मुझे उम्मीद है कि ये आसानी से चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, और किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।